تو السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے ویورز؟ کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو ہے دنیا کے وہ کچھ مسلم ممالک ہیں، ایسی کنٹریز ہیں جس سے رشیا، چائنا اور امریکہ جیسی بڑی بڑی جو کنٹریز ہیں وہ بھی کاپتی ہیں۔ اور وہ کیوں کاپتی ہیں؟ کیوں ان سے جو اپنا ٹاکرا نہیں لینا چاہتی، ان سے ٹکرانا نہیں چاہتی؟ تو یہ کون کون سی کمپنیاں ہیں اور کون کون سی کنٹریز ہیں؟ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو کافی مزے ہونے والی جا رہی ہے۔ تو آپ کو ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں جس سے امریکہ، رشیا اور چائنا جیسی بڑی بڑی کنٹریز بھی گھبراتی ہیں پنگا لینے سے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ویڈیو۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا ایسی کنٹری ہے جو کسی بھی دیش کو راتوں رات ختم کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دیش امریکہ اور رشیا جیسی کنٹری کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسلم کنٹری بھی ایسی ہیں جن سے امریکہ اور رشیا جیسے دیش بھی تھر تھر کانپتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی 10 پاورفل مسلم کنٹری کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی طاقت وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور کئی معاملوں میں وہ امریکہ اور رشیا کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ نمبر 10، ملیشیا۔ 10 پاورفل اسلامک دیشوں کی لسٹ میں 10ویں نمبر پر آتا ہے ملیشیا۔ ملیشیا طاقت کے معاملے میں کئی دیشوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ملیشیا کی پاپولیشن تقریباً 3 کروڑ ہے۔ ان کی ملٹری کی سنکھیا 4 لاکھ کی ہے۔ بات کی جائے ان کے نامنل جی ڈی پی کی تو وہ $336 بلین ہے اور ملیشیا کا ڈیفنس بجٹ $3.8 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ ملیشیا کے پاس آج کے وقت میں لڑنے والے 48 ٹینک، 196 آرٹلریز اور ایسے کئی ہتھیار ہیں جو کسی بھی دیش کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ملیشیا کے پاس 50 ملٹری ہیلی کاپٹر، 26 فائٹر جیٹس اور 13 اٹیکر ایئر کرافٹ موجود ہیں جو ملیشیا کو اور بھی زیادہ طاقتور بناتے ہیں۔ نمبر 9، یونائیٹڈ عرب امارات۔ یو اے ای کا ڈیفنس بجٹ اس سال $23 بلین کا ہو گیا ہے، تو وہیں ان کی نامنل جی ڈی پی $353 بلین ہو چکی ہے۔ بات کی جائے یو اے ای کی ملٹری کی تو ان کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کی ملٹری ہے جس میں سے تقریباً 50,000 ایکٹیو ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یو اے ای پاورفل دیشوں میں پوری دنیا میں 36ویں استھان پر آتا ہے، لیکن اگر بات کریں پاورفل مسلم دیشوں میں تو یہ یو اے ای 9ویں استھان پر ہے۔ یو اے ای کے پاس 434 بیٹل ٹینک، 180 آرٹلریز اور تقریباً 112 راکٹ پروجیکٹر موجود ہیں۔ یو اے ای کے پاس تو یار اس کے بعد یو اے جو ہے نہ بڑی اتنی کنٹری ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے، اور ان کی جو ہے 1 لاکھ ان کی آرمی کی جو اسٹرینتھ ہے، تو یہ کیسے اتنی پاورفل ہو سکتی ہے جہاں پر 12 لاکھ ایکٹیو سولجر جس کنٹریز میں پڑے ہیں اور اتنے لیول کے ہیں، اور ان کے پاس اتنا کچھ ہے اور ان کے پاس اپنی فورس پوری نہیں ہے، تو یہ کیسے نمبر 9 پہ آ گئے؟ تو یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ہے تو یہ کیوں ہے، اس کا فیکٹ کیا ہے؟ 100 سے زیادہ فائٹر جیٹ، 250 ملٹری ہیلی کاپٹر اور 20 اٹیکر ایئر کرافٹ ہیں۔ حالانکہ سمندری طاقت کی بات کی جائے تو یہاں یو اے ای تھوڑا کمزور ہے کیونکہ یو اے ای کے پاس نہ تو کوئی سبمرین ہے اور نہ ہی کوئی ڈسٹرائرز ہیں۔ نمبر 8، نائجیریا۔ پاورفل مسلم دیشوں کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر آتا ہے نائجیریا، جس کی پاپولیشن 21 کروڑ کی ہے اور ان کا ڈیفنس بجٹ اس سال $2.1 بلین کا تھا۔ ان کی ملٹری کی سنکھیا 3.2 لاکھ ہے جبکہ نامنل جی ڈی پی $443 بلین ہے۔ بات کی جائے نائجیریا کے لینڈ پاور کی تو نائجیریا کے پاس 355 بیٹل ٹینک، 339 آرٹلریز اور 49 ملٹیپل راکٹ لانچر ہیں جو کہ کسی بھی دیش کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہیں ایئر پاور میں نائجیریا کے پاس 8 فائٹر جیٹ، 13 اٹیکرز ایئر کرافٹ اور 56 ملٹری ہیلی کاپٹر ہے۔ حالانکہ نائجیریا ابھی سمندری طاقت میں اپنی پکڑ نہیں بنا پایا ہے، لیکن پھر بھی پاورفل مسلم دیشوں کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر اس کی گنتی کی جاتی ہے۔ نمبر 7، تو یہ تو سب کو پتا ہے نائجیریا کے پاس 21 کروڑ کی پاپولیشن ہے اور اس کے بعد اتنا زیادہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ نمبر 8 پہ آ رہا ہے۔ لیکن یار مجھے یہاں تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسی کنٹریز جو پاورفل دکھائی جاتی ہیں اور ہیں بھی، نائجیریا ہے پاورفل کیونکہ ان کی آبادی بھی کافی ہے، ان کے پاس چیزیں بھی بہت اچھی ہیں، بہرحال وہ جو سمندر میں اپنی جو پکڑ ابھی تک واقعی نہیں بنا سکے کیونکہ ان کے پاس اتنی نیوی کی پاور نہیں ہے۔ تو یہ ایک پاورفل کنٹری دکھنے میں لگ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ایک پاورفل کنٹری ہونے کے لیے کافی ہیں۔
अल्जीरिया का पिछले साल डिफेंस बजट $13 बिलियन था, जबकि अल्जीरिया की पॉपुलेशन 4.4 करोड़ है और अल्जीरिया की नॉमिनल जीडीपी $180 बिलियन है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्जीरिया आने वाले वक्त में काफी पावरफुल देश बन सकता है, क्योंकि आज के समय में अल्जीरिया के पास 2024 बैटल टैंक, 396 आर्टिलरीज और 300 मल्टी रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। इसके अलावा एयर पावर में अल्जीरिया के पास 100 फाइटर जेट, 315 मिलिट्री हेलीकॉप्टर और 22 अटैकर एयरक्राफ्ट हैं। इतना ही नहीं, अल्जीरिया के पास 8 सबमरीन, 8 फ्रिगेट्स और 10 कॉर्वेट मौजूद हैं। यही वजह भी है कि आज अल्जीरिया पावरफुल इस्लामिक देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। नंबर 6 सऊदी अरबिया। दोस्तों, सऊदी अरब की करंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो सिर्फ 3.4 करोड़ है, जबकि इनकी मिलिट्री की संख्या 9.8 लाख है, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि सऊदी अरेबिया आने वाले वक्त में किसी भी देश को पराजित कर सकता है। सऊदी अरेबिया की नॉमिनल जीडीपी $680 बिलियन की है और सऊदी तो इसकी सऊदी अरेबिया की तो समझ आती है, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की जिसके पास कमी होगी वो नज़र आएगा कि हाँ पैसे की कमी है यार इसके पास, तो जिसकी वजह से ये कमज़ोर है। तो अगर पैसे के लिहाज से सऊदी अरेबिया को देखा जाए तो इनकी बहुत ही पावरफुल बॉन्ड्स है, बिल्कुल, क्योंकि इनके पीछे पैसा काफ़ी है। उसके बाद इनकी जो फैसिलिटीज़ बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं अपनी आर्मी के लिए और अपनी जो भी है गवर्नमेंट की फोर्स के लिए, और अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा रहन सहन और अच्छा खाना, हर चीज़ अच्छी देते हैं, जिसकी वजह से इनका तो बनता है 6 नंबर पर। तो आगे देखते हैं बाकी कौन सी कंट्री है और पाकिस्तान किस नंबर पे आता है। की डिफेंस बजट तकरीबन $48 बिलियन का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भी सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ने अपने हथियारों पर काफी पैसा खर्च किया है और इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि सऊदीया के पास आज के समय में 300 से ज्यादा मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 1062 बैटल टैंक और 1800 आर्टिलरीज हैं। वहीं एयर पावर में सऊदी अरेबिया के पास 300 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 279 फाइटर जेट हैं, जो सऊदी अरेबिया को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। नंबर 5 इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन 27 करोड़ है। इस साल इंडोनेशिया का डिफेंस बजट तकरीबन $9 बिलियन का था। इंडोनेशिया का इस साल नॉमिनल जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा था। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के पास 14 लाख से ज्यादा मिलिट्री है। इंडोनेशिया के लैंड पावर की बात की जाए तो इंडोनेशिया के पास 332 बैटल टैंक, 63 मल्टी रॉकेट लॉन्चर और 366 आर्टिलरीज मौजूद हैं। वहीं एयर पावर में इंडोनेशिया के पास 203 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 38 अटैकर एयरक्राफ्टर और 41 फाइटर जेट हैं। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया समुद्री ताकत में भी किसी से कम नहीं है। इंडोनेशिया के पास 5 सबमरीन, 7 फ्रिगेट्स और 24 कॉर्वेट हैं। यही वजह भी है कि इंडोनेशिया आज के समय में किसी भी देश से नहीं डरता। नंबर 4 ईरान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है। वहीं ईरान की डिफेंस बजट की बात की जाए तो हर साल ईरान अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए $22 बिलियन खर्च करता है। आज ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैटल टैंक, 2400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर और 2100 से भी ज्यादा आर्टिलरीज हैं। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का भी शक जताया जा रहा है। इस कारण ही अमेरिका जैसे देश भी ईरान से सीधे टकराने से कतराता है। नंबर 3 तुर्की। क्या आप जानते हैं कि तुर्की पहला देश था जिसने रोबोट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था और उसके बाद पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। आपको तो यार ये टर्की था जिन्होंने सबसे पहले रिबोट जैसी चीज बनाई थी, जिसे हम आज देख रहे हैं। उसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंट्री टर्की है यार अप लेवल है। मज़ा आ गया ये इंफॉर्मेशन सुन के, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद इन्होंने किया जो आज तक हमें पता ही नहीं है कि ये किस मुस्लिम साइंसदानों ने और मुस्लिम कंट्री में से इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये आपने बताना है कि कमेंट में किस सन में किया गया था, कौन सी सदी में किया गया था इंट्रोड्यूस, ये जो रिपोर्ट इन्होंने पहला बनाया था और किस तरह का था। अगर आपके पास हो तो काइंडली लाजमी पिक शेयर कीजिएगा। हैरानी होगी कि तुर्की अपनी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए हर साल तकरीबन $18 बिलियन खर्च करता है, जबकि इस दुनिया में कई ऐसी कंट्री है जिनका टोटल जीडीपी भी 18 बिलियन से कम है। और ये वजह भी है कि आज तुर्की की सैन्य शक्ति पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आती है। तुर्की के पास 3000 से ज्यादा बैटल टैंक, 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर और 1200 से भी अधिक आर्टिलरीज मौजूद है। इतना ही नहीं, तुर्की के पास 245 से भी ज्यादा फाइटर जेट, 580 मिलिट्री हेलीकॉप्टर और 48 से भी ज्यादा अटैकर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो किसी भी देश को धूल चटाने की ताकत रखते हैं।
नंबर 2, इजिप्ट। इजिप्ट आज के समय में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। यही वजह भी है कि इजिप्ट ने अपने डिफेंस बजट को 5 से बढ़ाकर $7 बिलियन का कर लिया। आज के समय में इजिप्ट के पास 9 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री है। लैंड पावर की बात की जाए तो इजिप्ट के पास 3700 से भी ज्यादा बैटल टैंक, 2200 आर्टिलरीज और 12 से 30 मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं। इसके अलावा इजिप्ट के पास 250 फाइटर जेट, 93 अटैकर एयरक्राफ्ट और 400 से भी ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर हैं, जो इजिप्ट को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। समुद्री ताकत में भी इजिप्ट किसी भी पावरफुल कंट्री से कम नहीं है। आज के समय में इजिप्ट के पास 13 फ्रिगेट्स और 8 सबमरीन्स हैं। नंबर 1, पाकिस्तान। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हर साल $10 बिलियन का डिफेंस बजट तैयार करता है, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री की संख्या 12 लाख है, जिनमें तकरीबन 5 लाख एक्टिव है। पाकिस्तान के पास 2750 बैटल टैंक, 560 मल्टी रॉकेट लॉन्चर और 1600 आर्टिलरीज हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास 350 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 9081 एयरक्राफ्ट और 357 फाइटर जेट हैं, जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर वाला देश भी बन गया है, और यही वजह भी है कि पाकिस्तान आज के समय में सभी मुस्लिम कंट्री में ताकत के मामले में आगे निकल गया है। आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में कौन सी मुस्लिम कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकेगी? अपना जवाब कमेंट में हमें जरूर दें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। तो ये एक काफ़ी मज़े की बात थी, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी जो फौज थी, सिक्योरिटीज़ और एटमी ताकत थी, जो कंट्रीज जिनका सिक्का चलता था पूरी दुनिया में और लोग इनसे डरते थे, तब ये मुसलमान मुल्कों में आकर उनकी जगह पर आके लड़कर वहाँ से मार खाकर वापस गई थी। तो ये एक पाकिस्तान नंबर 1 पे है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो जितनी 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में से सिर्फ पाकिस्तान ही न्यूक्लियर पावर है, और जिसकी वजह से 57 ममालिक बचे हुए हैं अभी तक। तो ये एक काफ़ी मज़े की इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।